Hello students, this is TG classes. I am Sushil Gildial. Today I am going to teach you BSc Organic Chemistry, Hydrocarbons and Heterocycles, lecture number 1. But before teaching this, I would like to give you some tips regarding how to study. Students, daily you have to revise whatever you have been taught. And secondly, what you have to do is weekly you complete at least 25% of the syllabus, and on completing revise it and go for next week, go for the next 25%. In this way you will complete 50% syllabus, and only after completing and gaining confidence in 50% syllabus only go on to the next 50%, because otherwise it will not be useful if it is not solid. And secondly, I want to say that what you will do before exams, 15 days before exams, you have to do only just go through the 40% of the exam of the syllabus. First of all, do it solid, and thereafter go to another whatever left 60%. This is what I have told you daily, what you have to do. This I have told you monthly. During exams I have told you what you have to do, and this all things is necessary. And first and daily what you have to do, this is the most important thing. Daily fix a chart. It contains whatever the important notes that you make and formulas, principle, etc., and fix that chart containing all these things near your bedroom where you sleep, and daily you revise these things. So it will gain confidence for appearing your university exams. Confidence is very important. So I have told you that what you have to do, just there should be a solid 50% of the syllabus plus university examination, previous university exams, 5 years university exam papers should be solved, and rest general study should be done. So this is the, you can say, this is the formula of studying. However, it is not important, it is not compulsory to follow this rule. If you have some rule, then you can follow it. Because I trust this rule because I have followed it. So this is the way how you could study. Now let's start BSc Organic Chemistry, Hydrocarbons and Heterocycles, lecture number 1. Hydrocarbons are divided into two parts: aliphatic hydrocarbons and aromatic hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons are again divided into 4 categories: alkanes or paraffins, saturated hydrocarbons; alkenes, that's general formula is CnH2n, alkynes CnH2n minus 2, and cycloaliphatic hydrocarbons or alicyclic hydrocarbons which forms the ring. What are hydrocarbons? Which are made of the compounds which are made of organic compounds which are made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbons, and these are divided into 2 categories: aliphatic and aromatic. So with the help of the aliphatic, how could you remember this? How would you remember? Fat, you can remember it as a fat. So fat means, suppose you are there is a single bond, and single bond is gaining fat, more and more fats it has gained. Single bond means alkanes, or paraffins it is called, saturated hydrocarbons. Its general formula is CnH2n plus 2. And you have gained more and more fat, then you convert it into alkene, and that's general formula CnH2n. इसमें फैट आपने इंक्लूड किया सिंगल बॉन्ड में फैट बढ़ गया तो क्या बना? एल्कीन बन गया, डबल बॉन्ड बन गया. इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं. और फिर और ज़्यादा फैट आपने इंक्रीज किया तो फिर वो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, एल्काइंस बन गया, CnH2n minus 2 इसका जनरल फार्मूला है. ठीक है स्टूडेंट्स,
और इसके बाद आपका एली से याद करने का तरीका ये हो जाएगा कि एली से बन रहा है एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बन रहा है, और या फिर इसको साइक्लो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जो कि फॉर्म रिंग बनाता है। सेकंड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये एरोमा मीन्स सेंट, खुशबू, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग वगैरह आती है जिसमें कि कंजुगेशन होता है, सिग्मा पाई इस तरीके से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका अलग है। पहले ये समझते हैं। एल्केन्स का क्या है, पैराफिन्स भी बोलते हैं इसको, पैरम प्लस एफिनिटी, दैट मीन्स लिटिल, एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, पैरम मीन्स लिटिल एफिनिटी टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग और टुवर्ड्स फॉर्मिंग कंपाउंड्स। लिटिल मीन्स बिकॉज ये आपका सिंगल बॉन्ड में है, तो सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड होता है, उसकी और ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने की क्षमता नहीं होती है, एफिशिएंसी नहीं होती, इसलिए इसको कहा गया लिटिल एफिनिटी, ज़्यादा कम, क्योंकि सैचुरेटेड है वो। एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि नॉन पोलर होते हैं एल्केन्स आर नॉन पोलर। जैसे कि CH4 है, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर, नॉन पोलर इसीलिए है क्योंकि इसने अपने कार्बन ने हाइड्रोजन को लेकर के चार बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 फिर sp3 इस तरह से 4 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 और आपका ये 4 बॉन्ड, ये चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना दिया इसने, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बना दिया चारों बॉन्ड, तो सैचुरेटेड हो गया। अब कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि 4 ही वैलेंसी है इसकी, 4 होते हैं ना इसके, तो इस तरीके से इसने बॉन्ड बना दिया, तो ये नॉन पोलर हो गया। अभी पोलैरिटी नहीं कर पाएगा, पोलैरिटी जो पता ही आपको कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होती है पोलैरिटी, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर को, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये इसको शिफ्ट करता है ना इलेक्ट्रॉन पेयर को टुवर्ड्स इटसेल्फ, थोड़ा सा खिसक जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनता है डेल्टा प्लस और ये बनेगा डेल्टा पोलैरिटी। तो यहाँ इस केस में पोलैरिटी इसमें नहीं बन पाती, जब पोलैरिटी नहीं होगी तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा, तो इसे इट इज़ कॉल्ड, ये स्टेबलाइज हो जाता है, स्टेबिलिटी हो गई उसके पास, स्टेबिलिटी आ गई, अब इट इज़ बिकम स्टेबल, इस तरीके से आपका, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। sp3 कार्बन का जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये 4 बॉन्ड जो बनाए हाइड्रोजन के साथ बना दिया उसने, तो इसलिए इसकी गुंजाइश नहीं है कि किसी और को, जब तक एक हटेगा नहीं, जैसे ये हट जाएगा तो फिर दूसरा आएगा, सब्सटीट्यूट होगा ना, तो तभी ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इसलिए ही ये देता है। सैचुरेटेड का मतलब एक आप ये भी देख सकते हो कि गिलास जो है ये आपने लिया और ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, फिल्ड अप विथ वाटर से भरा है, तो इसमें एक बूंद की भी गुंजाइश नहीं है इसमें डालने की, क्योंकि फिल्ड है ना पूरा, इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। तो जब तक आप जो है एक बूंद निकालोगे नहीं, इससे एक बूंद निकालोगे नहीं, तब तक एक बूंद जाएगी नहीं इसके अंदर, तो फिल्ड अप विथ कंप्लीट वाटर इज कॉल्ड सैचुरेटेड, ठीक है ना, इस इज कॉल्ड सैचुरेटेड। तो मैक्सिमम उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी हो जाती है, इसको MBC बोल लो, मैक्सिमम बॉन्डिंग जो कैपेसिटी है वो 4 बॉन्ड बनाने की है, उसने बना रही है, या तो फिर एक जो है क्या हो लेस हो और एक अंदर जाए, सब्सटीट्यूशन हो, सब्सटीट्यूशन पे ही जा पाएगा ये, वैसे नहीं जा पाएगा, या हीट करके जा पाएगा, हीट करके उसका एक बॉन्ड निकालो फिर दूसरा जगह, जो कि अल्काइल हाइड वगैरह जो आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल के जैसे कार्बन है इस तरह से आप बना सकते हो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर H। तो ये दोनों जो हाइड्रोजन है, ये तो एक ही प्लेन में, ये भी हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है ना, दीज बोथ हाइड्रोजन आर इन प्लेन। ये जो ये है आपका ब्लैक बोर्ड, इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में दोनों हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन जो इस ब्लैक बोर्ड के अंदर को है, बिलो द प्लेन, बिलो दिस प्लेन, और ये जो हाइड्रोजन है अबव द प्लेन, इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ
है। और ये जो एंगल बनाते हैं 109 डिग्री 28 मिनट का बनाते हैं, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट, या इसको ये भी लिख सकते हैं 109.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये इसके बीच में जो एंगल है, ये इसके बीच में यहाँ कहीं पे भी एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन का, मीथेन का। अब आगे थोड़ा और बताया जाएगा। एल्केन को याद करने के तरीके, एल्केन्स को SOBC की तरह इस तरह से भी याद कर सकते हो। तो एल्केन्स आर सैचुरेटेड, S से सैचुरेटेड बन गया, O से ओपन, B से ब्रांच्ड और C से ब्रांच चेन और हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन्स आर सैचुरेटेड, ओपन और ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। तो CnH2n+2 इसका फार्मूला है। इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं। एल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्काइल हैलाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके बाद देखिए, ड्यू टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड carbon atoms which are close together often join up with the expulsion of two hydrogen atoms to form a ring। रिंग भी बना सकते हैं, कार्बन कार्बन जो नज़दीक होगा वो आपस में ज्वाइन हो जाएगा और रिंग बन जाएगा। रिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिफेटिक, साइक्लिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक बोलते हैं या साइक्लो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स which have a general formula CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। Alkenes are also called paraffins which means little affinity। क्या बोलते हैं इसको? पैराफिन्स भी बोलते हैं। लिटिल एफिनिटी का मैंने बताया अभी कि इसमें कंपाउंड्स बनाने की क्षमता जो है कम होती है, क्योंकि सैचुरेटेड हो गया वो पहले ही, 4 हाइड्रोजन उसने ले लिए, sp3 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 sp3, ठीक है। और अब आगे वो तभी बनाएगा जब या तो एक हाइड्रोजन हट जाए फिर कोई दूसरी चीज़ आए। Alkenes are inert towards reagents such as acid, alkalis, oxidizing and reducing agents। तो इनर्ट है क्योंकि वैसे सैचुरेटेड है, तो फिर इनर्ट भी हो गया। तो किसके से? एसिड के साथ। इसको AAA से याद कर सकते हो। AAA से क्या हो गया? एसिड्स, A से अल्कलीस, और ये एजेंट्स हो गए जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। उसको आप याद करने के तरीके में साथ साथ इंटरेस्टिंग बनाना है इसको, लेक्चर को ना, इसलिए हम कीवर्ड्स भी साथ साथ आपको बताते रहेंगे किस तरह से याद रखना है। एल्केन्स आर इनर्ट टुवर्ड्स रिएजेंट्स सच एज एसिड, एल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। AAA याद रख लो। अंडर सुटेबल कंडीशंस एल्केन्स अंडरगो हैलोजिनेशन, पायरोलिसिस, एरोमेटाइजेशन एक्सेट्रा। सुटेबल कंडीशन में यहाँ पे ये आया कि ये HTP में होगा, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, क्योंकि नॉर्मल पे तो कंपाउंड बनाएगा नहीं, सैचुरेटेड है। तो हाई टेम्परेचर प्रेशर जब देंगे या विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट, सन लाइट में, तभी ये कंपाउंड बनाएगा। और हैलोजिनेशन देगा, पायरोलिसिस देगा, एरोमेटाइजेशन और भी बहुत सारे कंपाउंड देगा। अब आगे देखिए, मैनी ऑफ दीज रिएक्शंस प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स। अच्छा, इस केस में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो आगे बताया जाएगा। फिर एल्केन्स अंडरगो मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर or in the presence of ultraviolet light, example halogenation reaction that produces alkyl halide, haloalkanes बनाता है ना। आगे देखिए, these compounds are generally unactive under NTP, वो पहले ही बता दिया गया, saturation, because of saturation। In this, all electrons of carbon have paired making single covalent bond with hydrogen which are strong, and further there is no chance of combining with hydrogen atoms under NTP। ये तो सब बता दिया आपको। पेट्रोलियम इज द मेन सोर्स ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का सोर्स क्या है? पेट्रोलियम। बहुत सारे इसमें कंपाउंड मिक्स
कंपाउंड्स बनते रहते हैं, मोर देन 500 हैव बीन सीन। तो पेट्रोलियम इज द मेन सोर्स ऑफ एल्केन्स। ये आपका एल्केन्स के बारे में थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब आइए सैचुरेटेड, ओपन और ब्रांच्ड चेन में। जैसे ओपन है और ब्रांच चेन के बारे में बताया जाएगा, इसको नोट कर लेना स्टूडेंट्स। तो ओपन एंड ब्रांच चेन के बारे में बताया जाएगा। सैचुरेटेड, ओपन और ब्रांच्ड चेन। Saturated, open, branched chain. Open and branched chain. ओपन चेन में आप ये देखिए इस तरह से बना हुआ, तो ओपन चेन है। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 2 हिल्स बनाओ 5 के, 1 2 3 4 5 हो गए। तो कितने कार्बन हो गए? मैथ एट प्रोप्यूट, इसमें आपका पेंट है, तो 5 कार्बन में तो पेंट बोला जाएगा। पेंट सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया जाएगा, पेंटेन। पेंटेन बन गया। मैथ एट प्रोप्यूट पेंट। 1 2 3 4 5 हो गए ना, 5 कार्बन्स आर देयर। अब इसमें अगर OH लगा दे इसी में आगे, इसमें OH लगाया जाए तो कितना हो जाएगा? फिर कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5। पेंटेन हो इसमें, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट चेन, इसको बोलते हैं एन। एन कहा जाएगा तो एन पेंट, और OH कहाँ पे? फर्स्ट पे 1 लगा दिया जाएगा, OL। एन पेंट 1 OL। पेंटेन भी तो आएगा, सॉरी, पेंटीएन। ई को हटा दिया जाता है, ई को हम उसकी जगह 1, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ, तो इसको बोलेंगे पेंट 1 OL। पेंटेन 1 OL, पेंटेनॉल भी बोल सकते हैं, पेंटेन 1 OL। एन मीन्स स्ट्रेट चेन, पेंट का मीन्स 5 कार्बन चेन। ANE हटा दिया इसको क्योंकि सिंगल बॉन्ड, फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है वो जो OH से जुड़ा हुआ है, अल्कोहल से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 लगाया, OL लगा दिया, विच इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। तो दिस इज अ स्ट्रेट चेन, या इसको ओपन जैसे लिखा हुआ है, ओपन चेन भी बोल सकते, ओपन चेन कंपाउंड बन गया। इसके अलावा और भी होते हैं, इथेन, प्रोपेन, एन ब्यूटेन, कुछ भी सारे के सारे ओपन चेन में आएंगे, ओपन चेन कंपाउंड्स। अब आएगा आपके बाद इसके बाद आएगा ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ब्रांच चेन के बाद ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। जैसे कि आपको इसको बनाइए, इसमें काउंट करेंगे कितने कार्बन है? 1 2 3। मैथ प्रॉप हो गया। इसमें ब्रांच मिथाइल, इसको मिथाइल बोला जाएगा,
ठीक है ना। कितने कार्बन हुए, 1 2 3 प्रॉप। और क्योंकि सिंगल चेन है, एन लगाया जाए कौन से पे, सेकंड पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो प्रॉप 2 हो गया इसका। दो सेकंड पे मिथाइल है ना, तो सेकंड मिथाइल हो जाएगा इसमें, वो सेकंड मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, फर्स्ट सेकंड पे मिथाइल है, तो इसलिए सेकंड पोजीशन पे कारण इसको 2 लिखा मिथाइल, और प्रोपेन मीन्स हाउ मेनी कार्बन, मेथड ऑफ 3 कार्बन्स के कारण इसको प्रॉप लिखा। बिकॉज ऑफ 3 कार्बन्स वी कॉल इट्स प्रॉप, प्रोपेन। एंड बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड दिस इज द suffix is added ane because of the single bond। तो इसमें ब्रांच है क्योंकि मिथाइल जुड़ा हुआ है ब्रांच के थ्रू, ठीक है। अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ स्ट्रेट चेन, लेकिन स्ट्रेट चेन ना होकर के ब्रांच से मिथाइल जुड़ गया, तो देयरफॉर इट इज अ ब्रांच चेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। सेकेंड, इसको देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए, इधर आप मिथाइल जोड़ दिए हमने, 2 मिथाइल, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा कि इधर से काउंट करेंगे 1, कहीं से भी काउंट, इधर से भी कर सकते हैं 1 2, इधर से भी कर लो चाहे 1 2 3 4। तो इसको देखो कौन सी पोजीशन पे है, पहले तो देख लिया जाएगा कौन सी है, 1 टोटल कार्बन स्ट्रेट चेन में, ऐसे बन रही है स्ट्रेट चेन इस तरह से। तो कितने कार्बन चेन है, 1 स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4, मेथड ऑफ ब्यूट, तो दिस विल बी ब्यूट। ब्यूट बोला जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसको ब्यूटेन कहा जाए, ANE इसमें आपका सफिक्स जोड़ दिया, ब्यूटेन। अब आप देखेंगे मिथाइल किस किस पोजीशंस पे लगा हुआ, सेकंड पोजीशन पे भी है, थर्ड पे भी है, तो सेकंड, 2, 3 और 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल कर देंगे इसको, डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन कहा जाएगा इस स्ट्रक्चर को। इट इज़ ऑल्सो ब्रांच चेन, क्योंकि 2 मिथाइल, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल हो गए ना, तो ब्रांच चेन हो गया। चाहे सिंगल जुड़ा चाहे 2 जुड़ा, लेकिन ब्रांच में जुड़े हुए हैं तो ब्रांच चेन हो गया। इसके बाद हम एक और देखते हैं स्ट्रक्चर, इसमें मिथाइल हम यहाँ लगा दें, एक आप यहाँ लगा दो। इसको क्या कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, इसको बोला जाएगा 5 कार्बन चेन है, तो पेंट बोला जाएगा, पेंट, TAN, ई हटाया जाता है, तो यहाँ पे तो सिंगल ही है तो इसको पेंटेन ही लिखा जाएगा। अभी कुछ और नहीं है ना, और ग्रुप वगैरह नहीं जुड़ा हुआ, फंक्शन ग्रुप। अब इसमें कितने हैं, पेंटेन टोटल कार्बन को काउंट करना है, देखो 1 2, इसमें 3, इसको भी काउंट करना है 4, और ये आपका 5 हो गया, 5 कार्बन हो गए ना टोटल, तो टोटल आपका 5 कार्बन हो गया। तो पेंट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो गया। अब 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड हियर, 2 मिथाइल ग्रुप और सिमिलर ग्रुप्स होने के कारण इसको आइसो बोला जाएगा। सिमिलर ग्रुप्स होने के कारण इसको क्या बोला जाएगा, आइसो कहा जाएगा, आइसोपेंटेन, इसका नाम क्या होगा, आइसोपेंटेन। क्लियर। इसके बाद आएगा आपका नियोपेंटेन, के लिए देखते हैं, ये सब ब्रांच चेन है, दीज आर ऑल ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। CH3, इसमें कितने ग्रुप हैं, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, 4 है ना, 4 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड। तो जब भी किसी कार्बन से 4 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं टोटल, तो इसको बोलते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। इसका कितना होगा, C5, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5 और H12, C5H12 है ना, नियोपेंटेन, इट विल बी कॉल्ड नियोपेंटेन। 4 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड, 1 2 3, इसे भी मिथाइल है, दिस इज ऑल्सो मिथाइल। तो व्हेन carbon is attached to 4 methyl groups, then it is called
then it is called neo, and it will be called completely as a neopentane. So these are all the branch chain hydrocarbons. Have you noted? Now I am rubbing. And now a little knowledge about stereoisomers. Stereoisomers of C5H11OH. C5H11OH के बारे में पता जाएगा. Stereoisomers whose molecular formula is same. Molecular formula is same, but the atoms की जो पोजीशन होती है different arrangement of position, different arrangement of atoms, इसके कारण इसको बोलते हैं stereoisomers. Molecular formula से बॉन्ड भी सेम होगा. मान लो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सभी में सिंगल ही बॉन्ड रहेगा, but there would be a different arrangement of atoms in space, different arrangement of atoms या molecules in space. स्पेस में डिफरेंट, कभी इधर होगा कभी आगे पीछे होगा इस तरह से, लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला वुड बी सेम. तो स्टीरियोआइसोमर्स ऐसे याद कर सकते हो. स्टीरियो जैसे बज रहा है, बॉन्ड को मैं बैंड के उस बॉन्ड है ना, तो स्टीरियो बज रहा है, बैंड एक ही है समझने के लिए, बाकी तो अपने आप याद हो जाएगा ना लेटर ऑन यू विल. तो बैंड एक ही है, बॉन्ड को बैंड से हमने सिमिलरिटी लिया, ठीक है. सिमिलर बॉन्ड एक ही है, स्टीरियो बज रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है. स्पेस में जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आवाज़ें आ रही है, ठीक है ना. डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, क्योंकि जब एटम्स अलग अलग होंगे तो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, तो आवाज़ें भी स्टीरियो में अलग अलग डायरेक्शन से आवाज़ आपको सुनाई देगी. जबकि आपका क्या है, जो बैंड है वो तो सेम है, यानी बॉन्ड सेम है सभी में. बाद में अपने आप याद हो जाएगा, अभी थोड़ा समझाने के लिए, ताकि इजीली आपको लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस के लिए है ये करना चाहिए, ठीक है ना. मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम, but there would be a different arrangement of atoms and molecules in space, then it will be called stereoisomers. Stereoisomers कहा जाएगा. ठीक है. atoms are making different positions in space. जैसे कि आपका ये वाला है, थ्री पेंटानॉल बोला जाएगा इसको, थ्री पेंटानॉल, ठीक है. थ्री पेंटानॉल कितनी पोजीशन पे है कार्बन, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड देयर आर 5 कार्बन्स. तो इसलिए पेंट आ गया बिकॉज ऑफ द 5 कार्बन्स. टोटल 5 कार्बन चेन है, स्ट्रेट चेन लिखोगे, 5 कार्बन्स की स्ट्रेट चेन है. अब OH ग्रुप किस पोजीशन पे है, कौन से कार्बन से अटैच है OH ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल 1 2 थर्ड पे है, तो इसको 3 लिखा. पेंट बिकॉज ऑफ 5 कार्बन्स. पेंटेन पेंटेनॉल PNTAN ई हटा दिया जाएगा, पेंटेन होता है ना, ई हटा के OL लगा दिया, तो 3 पेंटानॉल. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पेंटेन TAN ई हटा दिया, थर्ड पे 3 OL भी लिख सकते हैं, पेंटेन 3 OL, 3 पेंटानॉल, 3 पेंटेनॉल. तो ये आपका. अब नेक्स्ट बनाते हैं. अब यहाँ पे OH देखो किधर आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, यानी सेकंड पोजीशन पे आ गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन
2OL हो गया, क्योंकि OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन से अटैच होने के कारण इसमें हम क्या, एक OH ग्रुप क्या है, सेकेंड कार्बन से अटैच है, तो इसलिए पेंटेन 2OL कहा जाएगा इसको। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 1 2 3 4 5, बिकॉज ऑफ द 5 कार्बन्स, तो इसको बोला जाता है पेंट। 5 कार्बन्स चेन है, स्ट्रेट चेन, पेंटेन। अच्छा, AN इसलिए लगा बिकॉज ऑफ द सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के कारण AN लगता है। E हटा करके उसकी जगह 2 लगा दिया, सेकेंड पोजीशन पे OH है, और OL अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, पेंटेन 2OL। इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं IUPAC में, ठीक है। ये सब आइसोमर्स हैं, किसके, C5H11OH के आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं। दीज आर द स्टीरियो आइसोमर्स। ऐसे ऐसे बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। एक जैसे आप इसको भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ये हो जाए, ये भी एन पेंटेनॉल होगा, स्ट्रेट चेन है, ये होगा एन पेंटर, पेंटेन, ई हटा देंगे, पेंटेनॉल, एन पेंटेनॉल। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट चेन इसको एन कहा जाता है, नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल। बिकॉज ऑफ 5 कार्बन्स इट विल बी कॉल्ड पेंट। 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, और इससे क्या अटैच है, स्ट्रेट चेन से OH ग्रुप, तो इसलिए OL लगा दिया सफिक्स। इट विल बी कॉल्ड एन पेंटेनॉल। दिस इज ऑल्सो द स्टीरियो आइसोमर ऑफ C5H11OH। C5 है ना, 1 2 3 4 5। H को तो आप बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा। फॉर्मूला होता है ना इसका, CnH2n और +2 होता है। तो जो 2 को हटा, ये +2 को एक हटा दिया आपने, एक हाइड्रोजन हटा दिया, और इसकी जगह OH लग गया, नहीं लग गया, इसको हटा के 1 हो जाएगा नहीं, तो ये फॉर्मूला बन गया। देखो C5, इसको काउंट, इसलिए H को काउंट करने की जरूरत नहीं होती। H तो अंडरस्टूड होता है, जहाँ जहाँ कार्बन होगा वहाँ H होगा, बिकॉज दीज आर हाइड्रोकार्बन्स के कारण ये H अपने आप ही कैलकुलेट हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 C5 हो गया, है ना। H अपने आप इससे कैलकुलेट होगा। जब 5 है तो कितना होगा, 5 to the 10 हाइड्रोजन, और 1 C11 हो गया, नहीं हो गया, C11, वो सॉरी H11 हो गया, C5 तो हो गया। अब C5 के बाद कितना हो, देखो 5 to the 10 और +1 हो गया, H11 और OH हमने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऐड करा, एक हाइड्रोजन को निकाल करके OH आया, तो एन पेंटेनॉल बन गया। एन मीन्स नॉर्मल, स्ट्रेट चेन को बोलते हैं एन, ठीक है। तो दीज आर द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ C5H11OH। ये भी वही है, देखो 1 2 3 4 5 C5 है, तो H11OH 1 2 3 4 5 हो गए ना टोटल स्ट्रेट चेन कार्बन्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स इन्हें बोला जाता है। इसमें देखिए पोजीशंस जो है किसकी, फंक्शनल ग्रुप की, जो लग रहा है ये क्या है, ये एटम और ग्रुप है, तो ग्रुप तो हो ही गया ना। तो इसकी पोजीशन कभी 3rd पोजीशन पे है, कभी इसकी पोजीशन 2nd पे आ रही है, और कभी जो 1st पे आ रही है। तो पोजीशंस चेंज हो रही है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पोजीशंस है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये मॉलिक्यूल्स इन स्पेस हो रहा है, ठीक है। इस बॉन्ड भी सेम है, सिंगल बॉन्ड है सब में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। दीज आर द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ C5H11OH। आइसोमर्स आगे आएगा, पर एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, थोड़ा हल्की जानकारी के लिए अभी पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको आगे। स्टीरियो आइसोमर्स। तो हमने क्या पढ़ा आज, एल्केन्स के बारे में जानकारी पढ़ी, ठीक है ना। उसके बाद उसमें ओपन ब्रांच चेन पढ़ा, साथ में हमने स्टीरियो आइसोमर्स भी पढ़ा। उससे पहले हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ी कार्बन की। उसके बाद एल्केन्स, एल्काइंस तो पता ही होगा आपको। जो एल्केन्स होता है उसमें क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आता है। एल्कीन में, एल्कीन डबल बॉन्ड आता है, और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड आता है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड।
इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। इसमें आपका सिग्मा पाई और इसमें सिग्मा और 2 पाई हो गया, पाई पाई, इस तरह से बनता है। ये स्टेबल होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड। वीक बॉन्ड्स, वीक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये बनाता है। इसके बाद इनका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ी, वो सब याद रखने, स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ा। और क्या पढ़ा था, शेप पढ़ा, एंगल पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, थोड़ा कार्बन के बारे में भी जानकारी दे दें, इसकी जो पोजीशंस होती है। थोड़ा हल्की जानकारी अल्कोहल्स के बारे में दे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, मान ले कि कार्बन का तो अभी पता है, टेट्राहेड्रल होता है स्ट्रक्चर, और इस तरह से अगर हम इसमें यहाँ पे एक OH है और एक कार्बन कर दें अगर अटैच, और बाकी 2 अगर हाइड्रोजन अटैच कर दें। अब ये कार्बन जो OH से फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, अगर ये कार्बन किसी एक कार्बन से अटैच होता है, ठीक है ना, तो इसको 1 डिग्री कहते हैं कार्बन, है ना, और बनाएगा OH के कारण, तो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, या प्राइमरी अल्कोहल भी बोल सकते हैं इसका, प्राइमरी अल्कोहल, बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन, अदर्स आर हाइड्रोजन, therefore इट्स कॉल्ड अ प्राइमरी अल्कोहल। ये 1 डिग्री कार्बन भी बोल सकते हैं, प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन में देखो, सी में क्या होगा, 2 कार्बन से अटैच होगा, व्हेन अ कार्बन इज अटैच टू 2 अदर कार्बन्स, और 2 ही हैं, बाकी तीसरा हाइड्रोजन है, देन इट विल कॉल सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे, कार्बन से OH अटैच है, फंक्शन ग्रुप से अटैच है, सेकेंडरी अल्कोहल भी कहा जाएगा इसको, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, या 2 डिग्री अल्कोहल, secondary alcohol. This carbon is attached to only 2 carbons, so it's called secondary carbon, and because this carbon is attached to the function group OH, then it will be called 2 degree or secondary alcohol, is it? And when this carbon is attached to 3 other carbons, when this carbon is attached to 3 other carbons, then it will be called tertiary alcohol, 3 degree और टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, दिस इज द 3 डिग्री कार्बन, बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन्स, 1 2 3, सो टर्सरी अल्कोहल बनाया, बिकॉज इन दिस कार्बन इज अटैच्ड टू OH ग्रुप, फंक्शन ग्रुप OH विच इज अल्कोहल, सो इट विल बी कॉल्ड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। एक और भी होता है 4 डिग्री कार्बन से होगा तो क्वाटरनरी कहा जाएगा, क्वाटरनरी कार्बन, कि क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी, जब वो चारों को 4 कार्बन से अटैच होगा ना, इस तरीके से, तो ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन विल बी कॉल्ड क्वाटरनरी, 4 कार्बन से अटैच है। यहाँ पे क्या होगा, इसमें कितने कार्बन हैं, इस कार्बन से 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो सेकेंडरी हो गया। अब कार्बन को सेटिस्फाई करोगे वैलेंसी से, तो 1 हो गए, 2 और 3 हो गए ना, और एक चौथा हो गया 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई इसकी। ठीक है, अब इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है,
इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कितने थे, इसका तो एक बॉन्ड हुआ, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, तभी तो सेटिस्फाई होगा। 3 और 1 4 हो गए। ऐसे इसमें भी कितने होंगे, इसमें आपका 1 2 3 4 अब हो गए ना क्लियर। इस कार्बन की बात करते हैं, 1 ये हो गया, तो इसमें 3 ऐसे लगाने पड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड्स और ये 1 4 बॉन्ड क्लियर हो गए। तो ये मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं यहाँ पे। ऐसी और जगह पे होंगे, यहाँ पे मिथाइल होगा, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 और 1 4 3 और 1 4 3 और 1 4 हो गया, ठीक है ना। 3 इसके हाइड्रोजन और 1 इधर, 1 बॉन्ड ये बना रहा है, 4 हो गए। इसके तो हैं 4, 1 2 3 4। हर कार्बन के कितने होंगे, हर कार्बन के 4 वैलेंसी होती है ना, 4 बॉन्ड्स बनाता है। sp3 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 और sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो 4 बॉन्ड बनाता है ना ये, 1 2 3 4। तो ये ध्यान में रखना बस, ये तो आपको पता ही होगा हाई स्कूल इंटर में, लेकिन रिवीजन हो रहा है साथ साथ। इस तरीके से आपको एरोमेटिक में क्या होता है, रिंग बनेगी इस तरह से। देखो ये हो गया पाई, फिर सिंगल, फिर पाई, फिर सिंगल, फिर पाई। इस तरह से जो रिंग बनती है एरोमेटिक, इसको बोलते हैं कंजुगेशन रिंग। कंजुगेशन में बन गया ना 1, इस तरह 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली कंजुगेशन हो गया। तो ये आप क्या, जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग कंजुगेशन है इसमें, पाई सिग्मा पाई, ठीक है ना। ऐसे कंजुगेशन जब होगा तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्या बोलते हैं इनको, एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, देखो 2 हो गया, 2 4 और 5 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं इस वाले में। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्लियर। पायरोलिसिस में क्या होता है, पायरोलिसिस PYRO लिसिस में हायर एल्केन से लोअर एल्केन्स पे कन्वर्ट होता है, हायर टू लोअर एल्केन्स, वो आगे बताया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक।